which is basically beyond Amazon, potential Pakistani sellers ke liye in global market. So for this session, we have a couple of guests which are pretty famous as well. So we're going to start with Mr. Shayan Mahmood, who's managing partner in Icon 7, Chief Brand Officer Pro Pakistani, and Chief Executive Officer for Trademore. He was also in Forbes 30 Under 30 in 2021. The next guest speaker we have is Mr. Awais Gilani, who's co-founder and chairperson at lejao.pk. The next one we have is Mr. Huzaifa Ali Sahab, who's the founder of E-commerce Success Pakistan. And our moderator for today's panel session is Abdul Rahman Ansari, who is Business Development Manager for Payoneer in Pakistan. Thank you, Ali, for introduction. And as Ali mentioned, that subject of the discussion is beyond Amazon, the potential of Pakistani sellers on different marketplaces. So, Shayan, what other marketplaces do you think actually are an opportunity for Pakistani sellers on different global marketplaces? Okay, so I think Amazon, which is obviously exploding in Pakistan, Etsy is doing very well. We have some customers selling cutlery, for example, or motorbike gloves, things like that. So it's doing well. But for me, if there was a standout, I'd say it's Alibaba. I think we have 3,000 sellers from Pakistan on Alibaba right now, and growing at about 65% year on year. And right now there are 300,000 daily inquiries on Alibaba from 190 plus countries, 18 million plus active buyers, and they're looking for Pakistani products. They're actively looking for the tag with Pakistan, whether that's bedding or sports goods or surgical equipment, for example. So Alibaba has really, come a long way in terms of as channel partners, what we've seen in the last 4 or 5 years. And I think that it's going to continue to really grow quickly. So I'd say Alibaba is a standout pick, but of course, it's holistic, right? You need to be on eBay, you need to be on Etsy, you need to be on Amazon, of course. So yeah, I'd say it's a bit of everything. और इसमें हमने ये भी देखा है कि जब हम बात करते हैं सेलर्स की, तो इसमें डिफरेंट बिजनेस मॉडल्स आते हैं, लाइक ड्रॉप शिपिंग है और B2B सेलिंग है, हम बात करें ई-कॉमर्स अदर जो बिज़नेस मॉडल्स हैं. आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तानी सेलर्स के लिए कौन सा बिज़नेस मॉडल जो है वो आइडियल है और उसमें बड़े इजीली जो है वो ग्रो किया जा सकता है? देखिए, मुझे लगता है कि पाकिस्तानी सेलर्स के लिए पहली बात तो एक होलिस्टिक मॉडल ज़रूरी है. आप डिफरेंट बिजनेस के लिए डिफरेंट टाइम्स. सो मिसाल के तौर पे ईबे या अमेज़ॉन में इन्वेस्टमेंट थोड़ी ज़्यादा होती है, अलीबाबा पे इन्वेस्टमेंट थोड़ी कम होती है, या एटसी इज़ अ डिफरेंट मॉडल विच इज़ B2C. सो इट डिपेंड्स ऑन योर प्रोडक्ट, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट यूर सेलिंग. लेकिन राइट नाउ वी हैव मैन्युफैक्चरर्स इन पाकिस्तान और सेलर्स इन पाकिस्तान जो क्रॉस प्लेटफॉर्म्स बेच रहे हैं. वो ही मोटर बाइक ग्लव्स फॉर एग्जांपल एटसी पे सिंगल कस्टमर को भेज रहे हैं DHL पे. वो ही कस्टमर फॉर एग्जांपल इज़ डूइंग अ मच बिगर ऑर्डर ऑन Amazon, a different sort of order on Alibaba. So what you want to think of is कि आपने Amazon से पैसे बनाए, Alibaba पे लगाओ. अलीबाबा से पैसे बनाए तो एटसी पे लगाओ, एटसी से पैसे बनाए तो होलिस्टिकली जब आप ये करना शुरू करेंगे तो फिर इट्स वेरी पॉसिबल टू बिल्ड अ मच बिगर नेटवर्क. सो ये कहना कि कौन सा प्लेटफॉर्म बेस्ट है, इट डिपेंड्स आपका स्टार्टिंग बजट कितना है, इट डिपेंड्स आपकी अभी कैपेसिटी कितनी है. लेकिन लॉन्ग टर्म अगर आप पूछें तो इट हैज़ टू बी होलिस्टिक. आपने सब पे बेचना है. द आइडिया इज़ टू बिल्ड across platforms and you can, and माशाल्लाह people in Pakistan are doing really well. जो हमारे buyers हैं अभी बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमारे एक्सपोर्ट कर रहे हैं, डिफरेंट तरीक़ों से कर रहे हैं, डिफरेंट प्राइसेस पे कर रहे हैं और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे भी कर रहे हैं. राइट. सो अवैस, जब हम बात करते हैं पाकिस्तानी सेलर्स इन डिफरेंट मार्केट प्लेसेस पे अप्रोच करते हैं अपनी ऑनलाइन सेलिंग स्टार्ट करने के लिए, व्हाट डू यू थिंक किस तरह की जो है वो ट्रेनिंग एंड सपोर्ट डू दे नीड
to excel in this field? For me, it's like पाकिस्तान में डिफरेंट आवाज़ आ रही है? जी जी पाकिस्तान में डिफरेंट प्लेटफॉर्म चल रहे हैं जो कि आपको ट्रेन करते हैं अमेज़ॉन के हवाले से, अली बाबा के हवाले से। उसमें सबसे माशाल्लाह हुज़ैफा साहब बैठे हुए हमारे साथ, अमेज़ॉन के एक्सपर्ट हैं। इस तरह के और भी बहुत काफ़ी लोग काम कर रहे हैं। इवन अब गवर्नमेंट लेवल पे ट्रेनिंग्स हो रही है अमेज़ॉन की। और इवन मैं देख रहा था कि अब चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भी डिफरेंट लेक्चर्स होते हैं अमेज़ॉन के हवाले से, एक्सपोर्ट के हवाले से, इंटरनेशनल ट्रेड के हवाले से। सो मेरे ख़्याल से जितने भी मैंने अटेंड किए हैं ये इस तरह के जो फोरम्स हैं जो गवर्नमेंट लेवल पर सपोर्ट कर रहे हैं यूथ को हमारे, उसमें जो मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हुई है वो ये है कि लोगों का इंटरेस्ट इतना नहीं होता। मतलब जहाँ पे आपको एक गवर्नमेंट लेवल पर आपको सपोर्ट हो रहा है तो वहाँ पे अटेंडेंस इतनी नहीं होती कि जिससे लोग फ़ायदा ले सकें। सो मेरे ख्याल से ये सबको मैसेज है कि जब भी आप को ऐसा कोई मैसेज मिले या आपको कोई ईमेल आ जाए चैम्बर की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से या कहीं से भी आपको ईमेल आती है कि इंटरनेशनल ट्रेड के हवाले से कोई लेक्चर हो रहा है या इंटरनेशनल ट्रेड के हवाले से आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, तो उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करें। आप एक एक डॉट आप सीखते हैं और उसको आप एक लाइन बनाते हैं वक्त के साथ साथ। सो अब दूसरा ये कि आप अगर आप पेड सर्विस लेते हैं किसी की तो वो भी बेस्ट है। आप क्यों ना आप एक चीज़ आप जो ख़ुद से स्टार्ट कर रहे हैं आप किसी के एक्सपीरियंस से सीखें और वक्त के साथ जो है वो जो उन्होंने अपने नंबर ऑफ़ ईयर्स लगाए हैं उस चीज़ को सीखने में, तो वो आप जल्दी सीख सकते हैं। तो दूसरी बात ये कि इंटरनेशनल ट्रेड में जो सबसे बड़ा जो लर्निंग जो है वो है एक पर्सनल बंदे की अपनी एक अंडरस्टैंडिंग किया है कि वो कैसे चीज़ों को सीखता है और कैसे उसको लेके चलता है। आप गूगल जिसने सीखना होगा वो गूगल करेगा और उसको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। इट्स जस्ट माइंडसेट, आप किस माइंडसेट को लेके चल रहे हैं और आप कैसे उसको अपने आप को ट्रेन करते हैं, अपने माइंड को कैसे ट्रेन करते हैं कि कहीं से भी लर्निंग अपॉर्चुनिटी आपको मिले और आप उसको आगे लेके चले। राइट, थैंक यू। हुज़ैफा, जब हम बात करते हैं ग्लोबल ई कॉमर्स ट्रेंड्स की, आप क्या समझते हैं बियॉन्ड अमेज़ॉन अभी ग्लोबली जो ई कॉमर्स में ट्रेंड्स जा रहे हैं वो क्या हैं और पाकिस्तानी सेलर्स उनको कैसे कैश आउट कर सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर बीइंग हैविंग मी हियर। अच्छा, इसमें मैं समझता हूँ कि अमेज़ॉन तो एक है ही और अमेज़ॉन के बियॉन्ड बिल्कुल देखना चाहिए, मगर साथ ही एक पॉइंट ज़रूर ऐड करूँगा कि ये भी एक पाकिस्तान के लिए ब्लेसिंग है कि इसी साल अमेज़ॉन ने पाकिस्तानी सेलर्स को ऑफिशियली एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया था। इंडीड, इससे पहले तक तो ये भी लोगों इसके लिए भी बड़े जतन करने पड़ते थे लोगों को। एग्जैक्टली। तो कम से कम इसकी अपॉर्चुनिटी को भी अवेल करना चाहिए। इसके अलावा जैसे हमारे भाई ने कहा कि एटसी जब 2018 में हमने इंट्रोड्यूस करवाए थे ना ये सारे मॉडल्स एटसी या अमेज़ॉन रीसेलरशिप या होलसेल के लिए, तो लोगों को पता भी नहीं था कि जी एटसी होता क्या है। आधे से ज़्यादा को तो बोलना भी नहीं ऑनेस्टली नहीं आता था। तो वो बड़ा हमने इसके ऊपर मेहनत की है कि एटसी के ऊपर, अब एटसी अभी भी कदरे छोटी मार्केट है अमेज़ॉन के मुकाबले में। दे हैड आई थिंक लास्ट इनका जो 2020 के जो नंबर्स थे वो कोई 1.7 बिलियन डॉलर्स थे नेट रेवेन्यू में। वाह। तो बट स्टिल मच बेटर कि स्पेशली मैं उस नज़र से इसलिए देखता हूँ एटसी को कि पाकिस्तान में हैंडमेड प्रोडक्ट्स बनाने का पोटेंशियल बहुत है। मतलब हर जगह मैं देखता हूँ हर कोई अपने अंदर एक फ़नकार भी है, कुछ ना कुछ बना ही लेता है। तो मैं समझता हूँ कि उसको ज़रूर एक्सप्लोर करना चाहिए एटसी पे। जैसे आपने पहले भी एक सवाल किया था कि जी किस बिज़नेस मॉडल पे जाना चाहिए, और बिल्कुल उन्होंने ठीक बताया कि मार्केट प्लेस के हवाले से भी बिज़नेस मॉडल्स को एक्सप्लोर किया जाता है। प्लस आपकी अपनी फ़िज़िक्स क्या कहती है कि जी मैं किस पे बेस्ट हूँ, मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ, किस टाइप की प्रोडक्ट्स। बाज़ वक़्त आप प्रोडक्ट्स के साथ इमोशनली भी जुड़ जाते हैं, तो वो जब इमोशनली जुड़ते हैं तो थोड़ी सी आप उसके साथ मेहनत ज़्यादा भी कर लेते हैं। मैंने ऐसा पर्सनली देखा है। तो एक तो एटसी है, इसके अलावा दूसरा ऑप्शन हमारे पास ईबे भी आता है। ईबे मैं समझता हूँ कि एटसी पे जितनी अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिल जाती ईबे पे कम है, इवन दो कि ईबे एटसी से बड़ा मार्केट प्लेस है। ये मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है, शायद मैं गलत हो सकता हूँ इसमें। तो ये ज़रूर एक्सप्लोर करना चाहिए। और अगर आप ये बाहर की मार्केट में नहीं जाना चाहते तो लोकल ब्रांड बिल्डिंग तो एक बेस्ट ऑप्शन है ही है, और सबसे समझ लें कि लो कॉस्ट
इन्वेस्टमेंट के साथ भी शुरू हो जाता है। हमारे पिछले पैनल ने बड़ी अच्छी बातें की, इन्वेस्टमेंट की, बड़े बड़े नंबर्स की भी बातें की, लेकिन वो लोग जो बड़े नंबर्स के गेम अभी नहीं खेल सकते या नहीं खेलना चाहते, वो 50,000 रुपये से भी लोकल ब्रांड बिल्डिंग का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ इसको ज़रूर एक्सप्लोर करें। फेसबुक एक ऐसा मीडियम है कि जो हर किसी के फ़ोन में हाथ में मौजूद है। आपने एडवर्टीज़मेंट चलाई, अभी भी पाकिस्तान का जो फेसबुक एडवर्टाइजिंग का जो रेट है वो हमें कॉस्ट आती है उसकी कोई अबाउट 3 to 4 सेंट्स पर इम्प्रेशन आती है, इस तरह कुछ आती है। तो मैं खैर फेसबुक एक्सपर्ट नहीं हूँ, उससे शायद मेरे नंबर्स गलत हो सकते हैं, लेकिन इट शुड बी सिमिलर। तो मैं समझता हूँ कि ये भी एक अच्छी बात है हमारे कंट्री के लिए कि अगर हम अपनी कंट्री का वो पोटेंशियल सामने लाना चाहते हैं कि जी मुझे कोई एक हाथ का बना कोई भी लोकल ब्रांड का प्रोडक्ट बेचना है, तो मैं बड़े आराम से फेसबुक एडवर्टाइजिंग कर सकता हूँ। यूट्यूब और गूगल एडवर्ड्स और ये सब बात की बातें हैं, महंगी भी हैं थोड़ी सी, लेकिन इसके लिए मैं समझता हूँ कि ज़्यादा एफर्ट्स लगानी पड़ेंगी किसी लेमैन को। लेकिन फेसबुक एडवर्टाइजिंग ऐसी चीज़ है कि जहाँ से आप इसको बड़े आसानी से पिकअप कर सकते हैं और लोकल मार्केट में एंटर हो सकते हैं। थैंक यू। मैं तीनों से पूछना चाहूँगा आपसे कि व्हाट डू यू थिंक जो हमारे पाकिस्तानी सेलर्स हैं उनके लिए अगर आप टॉप 3 to 4 चैलेंजेस बताएं कि क्या चैलेंजेस आते हैं एंड देन उनको वो कैसे टैकल कर सकते हैं ताकि वो अपनी जो सेलर के सेगमेंट में ग्रो कर सकें। चैलेंजेस देखें हर स्टेज पे हर बंदे को आते हैं, जस्ट लाइक कि आप उसको कॉप कैसे करते हैं। पाकिस्तान में जो न्यूली सेलर्स हैं जो अभी अपना बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान में सबसे बड़ा जो मुझे एक प्रॉब्लम नज़र आता है वो ये कि पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग को इतना सपोर्ट नहीं किया जाता। पाकिस्तान की मैन्युफैक्चरिंग की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना ख़ास नहीं है। और अगर आप देखें कि पाकिस्तान या इंटरनेशनल मार्केट में किसी ख़ास चीज़ को एक्सपोर्ट किया जाएगा ना, तो अगर आप वो चीज़ यहाँ पे बना रहे हैं, ख़ुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो आप किसी की प्राइस को बीट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक होता है कि आप ट्रेड कर रहे हैं कि कहीं से उठाया और वहाँ के आके बेच दिया, तो अगर आप अपने जो नेबर कंट्रीज़ हैं, चाइना है, इससे बड़ी एग्जांपल हमारे पास क्या है कि उन्होंने गवर्नमेंट लेवल पे छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर्स को जमा किया, अली बाबा के साथ मिलके, और उस मैन्युफैक्चरर्स को जो है वो इंटरनेशनल मार्केट तक लेके गए। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है। उसके लिए उसकी 2-3 रीज़न नज़र आती हैं मुझे। एक तो ये कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको इन्वेस्टमेंट ज़्यादा चाहिए होती है, क्योंकि आप पहले उसको इन्वेस्टमेंट चाहिए आप एक सेट लगाने के लिए, फिर उसको आप रनिंग कॉस्ट निकालने के लिए। तो लोग जो है वो मैन्युफैक्चरिंग से भागते हैं और ज़्यादातर ट्रेडिंग में फोकस करते हैं। दूसरा माइंडसेट बड़ा एक चैलेंज लगता है यहाँ के लोगों का मुझे, कि जो यंगस्टर्स है वो शॉर्टकट के चक्कर में है। वो कहते हैं बस आज हमने काम स्टार्ट किया और कल हम जो है वो एकदम से हम जो है वो बहुत आगे चले जाते हैं। लेकिन हर कहानी हर किसी की सेम नहीं होती, हर किसी का अपना स्टेज होता है, हर किसी का अपने रिसोर्सेज होते हैं, अपने स्किल्स होते हैं। तो शॉर्टकट का कभी भी कोई रिज़ल्ट नहीं निकला। मैंने जो अपना एक्सपीरियंस देखा है या जो आसपास के लोगों को देखा है मैंने, कि वो वक्ती फ़ायदे को देख के शॉर्टकट्स तो कर लेते हैं, जो यहाँ पे बोलते हैं जुगाड़ लगा लेते हैं, लेकिन वो लॉन्ग टर्म जो है सस्टेन नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल से ये 2 चैलेंजेस बहुत मेजर हैं। एक तो अपने माइंडसेट को चेंज करना, और दूसरा गवर्नमेंट लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको सपोर्ट करना। तो ये 2 प्रॉब्लम्स हैं ऐसी जो कि जिसको एड्रेस करना ज़रूरी है मेरे ख्याल से। राइट, शायान योर थॉट्स। जी, जिस तरह आपने बिल्कुल कहा, बिल्कुल सही कहा। आई थिंक 2 इश्यूज़ हैं, एक इंटरनल जो एक्चुअली मैन्युफैक्चरर्स के इश्यूज़ हैं, और फिर एक एक्सटर्नल जो पाकिस्तान के इश्यूज़ हैं रिलेटेड टू सम रिलेटेड पेमेंट जो पेनियर ऑब्वियसली सॉल्व कर रहा है, सम रिलेटेड टू जिस तरह अली बाबा में ट्रेड इंश्योरेंस नहीं होती, या बहुत सारे इस तरह के पाकिस्तान में पैसे लाना बाहर करना, ये मसले मसाइल। बदर साहब ने इससे पहले बोला था कि स्टेट बैंक इज़ मेकिंग इम्प्रूवमेंट्स ऑन दोज थिंग्स। फिर एक बहुत बड़ा फैक्टर इंटरनल है। तो मिसाल के तौर पे अमेज़ॉन क्यों पाकिस्तान अब आया है और पहले नहीं आया था? क्योंकि हमारी आफ्टर सेल सर्विसेज बहुत बुरी हैं। हम मिसाल के तौर पे किसी को प्रोडक्ट पसंद नहीं आया, हम वापस नहीं लेते, हम सैम्पलिंग नहीं कराते। अब देखें, अगर आपने लॉन्ग टर्म एक बिज़नेस बनानी है, आपको क्लाइंट्स बनाने हैं, आपको उनसे एक रिलेशनशिप डेवलप करनी है, और ये
जनरली स्पीकिंग जो एक्सटर्नल है वो तो पाकिस्तान के इश्यूज़ हैं और वो मैन्युफैक्चरर्स के हाथ में नहीं है, लेकिन मैं मैन्युफैक्चरर्स को ये कहूँगा कि जो आपके हाथ में है पहले आप वो तो ठीक करो, और वो ये है कि आप अच्छी आफ्टर सेल सर्विसेज दो, आप सैम्पलिंग चाहते हैं वो लोग तो आप कराओ, आप एक बिज़नेस बनाओ। इफ़ यू हैव टू इन्वेस्ट जिस तरह इन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स या यू हैव टू इन्वेस्ट इन डिफरेंट क्लाइंट्स, तो वो ठीक है, लॉन्ग टर्म वो आपको फ़ायदा देगा। तो ये एक सॉर्ट ऑफ लॉन्ग टर्म माइंडसेट नहीं है हमारी, एंड मैं इनसे बिल्कुल एग्री करता हूँ। आई थिंक दैट्स वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स। Right. Thank you. Huzafa, your thoughts? हम जब अमेज़ॉन की बात करते हैं ना कि स्टूडेंट्स को सिखाते हैं कि जी कैसे कैसे पूरी बिजनेस की स्ट्रेटजीज़ हैं, उसमें एक बाकायदा एक मॉड्यूल है पूरा जिसमें हम कस्टमर सर्विस के ऊपर बात करते हैं कि व्हाट इज़ कस्टमर सर्विस एग्जैक्टली जो अमेज़ॉन एक्सपेक्ट करता है। जैसे फेलो स्पीकर्स ने कहा, ये प्रॉब्लम हमारे साथ ये कि जी अच्छा मैंने बेच दिया, मैं वापस क्यों लूँ भाई? दैट्स वन ऑफ द प्रॉब्लम्स। सेलर यहाँ का ये सोच के फ़ौरन परसेप्शन ले लेता है कि जी बायर का कोई फॉल्ट होगा, उसने कोई मसला पैदा कर दिया या डैमेज उसके पास जाके वो झूठ बोल रहा है, ये सारे मसले बड़े हैं। अब हम अमेज़ॉन ये कहता है बायर झूठ भी बोल रहा है ना तो भी आपने एक्सेप्ट करना है, दैट्स इट, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। आप कर ही नहीं सकते, बेशक वो पूरा आपने मैकबुक उठा के भेज दिया, बायर ने कुछ कर दिया, अमेज़ॉन डिसाइड करेगा कि क्या करना है। अब ये आप कह सकते हैं कि जी सेलर का तो नुकसान है, होता है, नुकसान भी हो जाता है बाज़ वक़्त, मगर अमेज़ॉन उस लेवल का वॉल्यूम भी लेकर आ रहा है हमारे पास एक सेलर के पास, चाहे आपका प्रोडक्ट प्राइवेट लेवल का हो, चाहे आपका कोई थर्ड पार्टी ब्रांड का हो, जैसे हम होलसेल FBA भी कहते हैं और रिसेलरशिप कहते हैं। यहाँ पाकिस्तानी सेलर्स का एक मेजर इशू ये है कि वो माइंडसेट नहीं है कस्टमर सर्विस देने का, और दूसरा इवन दो कि मैं इनकरेज करता हूँ कि अगर आप लोकल ब्रांड बिल्डिंग में भी जाते हैं ना तो आपको लाजमी है कि आप उस लेवल की कस्टमर सर्विस दें रिगार्डलेस के कस्टमर आपके साथ कोई किस्म का आपका कोई एडवांटेज ले रहा है, दैट्स परफेक्टली फाइन। आप अपने बिजनेस पे फोकस करें, आप 100 सेल्स करेंगे, 2 रिटर्न्स आनी है, अगर आप उस 2 रिटर्न पे अगर हम रोएंगे बैठ के तो आगे 100 को 200 नहीं कर पाएंगे, दैट्स माई प्रॉब्लम। तो मैं कहता हूँ कि जी वो 2 को साइड पे करें, लें जी आप पैसे अपने वापस लें, अस्सलाम वालेकुम, मुझे अपना काम करने दें। यहाँ हर सेलर का यही मसला आता है, जी वो रिटर्न्स आ गई, उसने ये मसला गया, तो ये सीखना बहुत ज़रूरी है। दूसरा मेजर इशू हमारे साथ जो आता है वो आता है पैसे बाहर भेजना। तो इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि अगर और आगे वो लोग भी सुने जो पॉलिसी मेकर्स हैं, ये बात उन तक पहुँचे, तो मज़ीद हमें इम्प्रूव करनी है। बैंक्स अभी भी अलाउ नहीं करते कोई बड़ी रकम बाहर भेजना। बड़ी रकम से मतलब अगर आप अमेज़ॉन पे सेल कर रहे हैं, HC पे सेल कर रहे हैं, अमेज़ॉन पे प्रोडक्ट्स हम पाकिस्तान नहीं मंगवाते, हमें रखनी ही बाहर है, हम सोर्स भी बाहर से कर रहे हैं, रखनी बाहर है, पाकिस्तान का अमल दखल ही नहीं है। ये तो एक और ब्लेसिंग है कि जी बाहर से माल उठाया, बाहर ही बेच दिया, सिर्फ पैसा पाकिस्तान में आ गया, लेकिन वो करने के लिए पाकिस्तान से बाहर पैसा भेजना पड़ेगा। किसी का कोई चचा मामा ताया बाहर नहीं बैठा जो उसको पैसे दे दे। तो ये मेजर 2 इश्यूज जो मेरी नज़र में, कस्टमर सर्विस का, एक पैसे बाहर मनी एक्सपोर्ट कह लें या जैसे भी फॉरेन रेमिट पैसे जो हमें भिजवाने, यहाँ अक्सर और बेशतर सेलर्स फंस जाते हैं और फिर उन्हें वो कोई ना कोई जो अंडर द टेबल राउट्स हैं फिर वो वाले यूज़ करने पड़ जाते हैं। Right. Thank you so much. आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया for gracing our occasion. So in the best interest of time, we need to wrap up this discussion. Thank you so much. Over to you, Ali.